Hello to all the students. I hope all of you are doing very well. Today I will be discussing the syllabus for your BCom semester 1. So let's begin. So in BCom first semester, honor students as well as general students will be studying 4 subjects each. The first one is Financial Accounting 1. The second is Business Law for honor students, and there is a different subject for general students, which we will discuss later. The third subject is Applied Money and Banking, and the last subject is AECC subject, which is going to be English or Hindi as per your choice. So let's discuss now the individual topics that you will need to study in each subject. Okay. So firstly, in Financial Accounting 1, you will be doing a revision of your 11th and 12th standard portion. You will have journal entries, ledger entries, trial balance, cash book, and all these similar topics which you have already discussed and already read in your 11th as well as 12th standard. One more topic which will be very similar to your 12th standard syllabus is bank reconciliation statement. Some of the students will find this new because I know कि बहुत सारे students जैक बोर्ड से हैं, बहुत सारे students CBSE से हैं, बहुत सारे students ICSE से हैं. सो इस कारण से थोड़ा बहुत आप लोगों को टॉपिक्स नए लग सकते हैं, बट हम लोग सारे टॉपिक्स को डील करेंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक और टॉपिक जो आप लोगों को बहुत सिमिलर लगेगी वो है dissolution of partnership. CBSE students will find that dissolution for partnership is again a revision of the partnership chapter which was there in their 12th standard portion. Apart from that, new topics which you will need to study here are accounting for hire purchase, installment payment system, which is part of the same chapter, and also royalty accounting. Now, royalty accounting is a completely new chapter, new topic. So, here you will understand and learn some new ways of accounting technique. Moving on to a bit of theory. What theoretical portion that you will need to study in Financial Accounting 1? So, for Financial Accounting 1 theory, you will need to know about IFRS. Now, what is IFRS? It is the uh, it is the financial accounting body which helps to frame the accounting rules and regulations. So we will need to learn a bit about what IFRS is, what are the various needs, क्यों जरूरत पड़ती है IFRS की, और क्या प्रोसीजर होता है एक फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने की. जो ये आप लोग रूल्स पढ़ते हैं, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स पढ़ते हैं, वो रूल्स कहीं ना कहीं बहुत पहले डिसाइड किया गया था और तब आज आप लोग ये पढ़ते हैं. तो इसी तरीके के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो किस तरीके से डिसाइड होते हैं वो हम लोग यहाँ पे उसका बेसिक देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को हम पढ़ेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बेसिक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप लोग पढ़ लेंगे. ठीक है. तो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन financial accounting 1. I hope that यू विल अंडरस्टैंड. यहीं पर आप लोग ये चीज समझ ले कि बीकॉम स्टूडेंट के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. इसीलिए आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत अच्छे से ध्यान दें और मेरे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें. Okay, now moving on to business law. Now, business law is a new subject which you have never studied. This is the first time, पहली बार आप एक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है. तो शुरुआत से ही आपको ये समझ जाना है कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है क्योंकि नया है. सारी चीजें नई हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. Okay, so let's see what are the topics which are there in business law.
So there are contract there are four different laws which we will be studying. The first one is the Contract Act. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली कि दो लोगों के बीच में अगर किसी भी तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे। एक समय पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था, बट अलग कर दिया गया क्योंकि समझा गया कि अब जरूरत है एक अलग एक्ट की, सिर्फ खरीद और सामान खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अलावा देखेंगे हम पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में, सब ने 11th 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पढ़ा है, पर पार्टनरशिप के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, एक पार्टनर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज हैं वो सारे हम यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आप लोगों को याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इस तरीके का आप लोगों का टॉपिक 11th 12th में कहीं ना कहीं रहा होगा। इसी से रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारे के सारे हम लोग ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको भी यहाँ सीखेंगे। दैट इज इट फॉर बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में आप लोगों को समझ जाना है कि पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। बिजनेस लॉ इज कंप्लीटली थियोरेटिकल, बट एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ याद करना है और लिख देना है। थ्योरी बिजनेस लॉ में थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्योंकि केस स्टडी आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को पूछा जा सकता है कि एक पूरा केस दे दिया जाएगा, एक पूरा सिचुएशन बता दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस कारण से आप लोग सिर्फ याद करके इस सब्जेक्ट को नहीं जा सकते हैं। इस सब्जेक्ट में रूल्स रेगुलेशन और लॉ का समझ भी होना जरूरी है। यू नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। शुरुआत से ही ध्यान देंगे तो बहुत आसान है। अगर वही सोचेंगे लास्ट में पढ़ने के लिए तो मैं बता दूं फिनेंशियल अकाउंटिंग लास्ट में पढ़ के कर सकते हैं, बिजनेस लॉ नहीं कर पाएंगे, डे वन से पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट, द थर्ड सब्जेक्ट इज अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग। आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट दिस क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूं। आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा आराम से पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही थियोरेटिकल है, याद करके जाएंगे तो आराम से आंसर्स लिख सकते हैं और बेसिक कॉमन नॉलेज के ऊपर है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये सब्जेक्ट पूरा बेस्ड है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बिजनेस स्टडीज में, मुझे जितना याद है बिजनेस स्टडीज में ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो उनको ये कुछ टॉपिक सिमिलर लगेंगे कि मनी क्या है, मनी का क्या यूज है, किस तरीके के मनी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, नंबर वन इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस एंड उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एंड दूसरा सब टॉपिक इज द नरसिम्हम कमिटी। नरसिम्हम कमिटी के रूल्स गाइडलाइंस क्या थे, रिकमेंडेशंस क्या थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टडी दीज टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल मेंशन राइट एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास। ठीक है, so this is applied money and banking. So these are the three main subjects that you will be studying for your bcom semester 1। शुरुआत में ही समझ जाइए क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आप प्लान कर सकेंगे कि कैसे पढ़ना है, किसको कितना समय देना है, कौन से टॉपिक्स टफ हैं, कौन से टॉपिक्स आसान हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को लास्ट में जाके वो सिचुएशन नहीं आएगा कि आप लोगों को लास्ट में जाकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप लोग एकदम इधर उधर घूम रहे हैं, नोट्स के लिए दौड़ रहे हैं, बुक्स नहीं है, बुक्स पता नहीं है क्या है, इस तरीके का सिचुएशन ना आए। इसीलिए ही मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को सब क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि सिलेबस किस तरीके का है, टॉपिक्स क्या है। अब आप लोगों को बुक्स के लिए मैं बोल दूं कि
अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग का आप लोगों को बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं नोट्स दूंगा दैट वुड बी एनफ। ठीक है। सेकेंडली, बिजनेस लॉ के लिए आप लोगों को बुक्स अगेन खरीद सकते हैं। अगर जो हिंदी के स्टूडेंट है उनको मैं बोलूंगा कि जरूर बुक खरीद लीजिए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में लॉ को पढ़ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आते हैं, जो शब्द आते हैं उसमें, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बुक से पढ़िएगा बिजनेस लॉ, हिंदी के स्टूडेंट्स जरूर। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि आई विल बी शेयरिंग अ पीडीएफ। मैं एक पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक ना खरीदना पड़े तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुक मत खरीदिए, बुक खरीदिए। बुक अवेलेबल है, अच्छे बुक्स अवेलेबल है। बिजनेस लॉ का कोई भी बुक खरीद लीजिए जहां पे आपको एटलीस्ट ये चार टॉपिक्स हो। वन इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकेंड इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इज सेल ऑफ गुड्स, एंड द फोर्थ वन इज पार्टनरशिप। कोई भी बुक चल जाएगा, सब बुक में सेम दिया हुआ है। ठीक है। बहुत ज्यादा कॉस्टली मत खरीदिएगा, नॉर्मल खरीदिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ भी भेजूंगा तो दोनों को मिलाकर आप लोगों को हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन, अगर आप बुक भी नहीं खरीदना चाहते हैं, पीडीएफ भी नहीं खरीदना चाहते हैं, मैं जितना नोट्स दूं या लिखाऊं उतना भी पढ़ के जाएंगे तो आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा मेरा नोट्स। क्लियर है? फिनेंशियल अकाउंटिंग जो कि मेन सब्जेक्ट है, हिंदी के स्टूडेंट्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स दोनों को बोलूंगा बुक एकदम तुरंत खरीद लीजिए। इसके अलावा मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा, जो पीडीएफ भेजूंगा, वो भी रेफर करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एंड इतना भी मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग गिरिडीह के स्टूडेंट्स में इतना कैपेसिटी है कि वो हजारीबाग में यूनिवर्सिटी में भी टॉप मार्क्स स्कोर कर सके। उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स चाहिए। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने जितना बोला है आप लोग एटलीस्ट उसका थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 11th 12th में आपने क्या परफॉर्मेंस किया है वो उसको भूल जाइए। आप अभी से अगर बीकॉम के शुरुआत से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बीकॉम खत्म होते होते 3 साल के बाद 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, बीकॉम का मार्क्स पूछा जाएगा। उसमें अगर आपका सीजीपीए 6.5 से ऊपर ना रहा, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, 6.5 सीजीपीए मैंडेटरी है। अगर नहीं है उससे अच्छा, तो बीकॉम की डिग्री का बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। सो आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर अवेयर नाउ कि सिलेबस क्या है उनका। आप लोगों के लिए हरदम मैं बोलूंगा कि क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, मैं जितना नोट्स दूंगा उसको फॉलो करो। थैंक यू ऑल।